get started with case study 12. W is a scented decorative items manufacturing company. W has always traded profitably due to targeting the niche market for high value decorative items. Decorative items often use waxes other than beeswax and paraffin. Bayberry wax is derived from the fruit of the bayberry bush and has a distinctive aroma, making it popular for manufacture of scented items. The market for scented decorative items is a saturated one, but the CEO has identified that W could begin selling online. तो ये लोग अभी ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं. करंटली दे हैव अ वंडरफुल मार्केट, अच्छा तगड़ा कस्टमर बेस है, हाई प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और नाउ दे आर प्लानिंग टू गो ऑनलाइन. नन ऑफ द डब्ल्यूज कॉम्पिटिटर्स हैव मेजर ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब कोई कंपटीशन भी नहीं है. W itself only has a special website that lists locations of its stores as well as products information. W की तो वेबसाइट भी है, मतलब हमको सिर्फ अब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की देरी है, बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक रेडी है अपने पास. The managing director is unhappy about this move. He is aware that W has had issues in maintaining IT system in the past. Most recently, W planned to implement an online inventory system which would have allowed stores to check inventory levels in order nearby W stores. The system was discarded due to increasing costs and issues with the operating system and the application software which were developed in-house by W's small IT team. मतलब इसके पहले भी हम लोग ने ऑनलाइन एक्टिविटी चालू करने की कोशिश की थी, बट वी फेल्ड देयर बिकॉज ऑफ द हेवी कॉस्ट स्ट्रक्चर and problems with the operating system and application software. The CEO feels that the issues with the earlier IT plans were because of lack of control. मतलब इनको एक चीज का अंदाजा आ चुका है कि अगर मुझे कोई सक्सेसफुल सिस्टम देनी है तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा. W has never employed an IT director and CEO has therefore recommended that if W decides to expand onto online retailing, the role will be required to be filled. CFO, Chief Financial Officer, who recently joined W, mentioned that operating across large number of states through online involves cumbersome data intensive exercise. For this, W needs to be integrated through cloud-based ERP program in addition to other operational requirements. For this, they will also be paid for additional budget. They will also be they will be requiring some additional budget. ठीक है. Identify the issues W may face when launching retailing and explain the requirement of IT to be strategic decision with W. आपको क्या चाहिए? W अगर ऑनलाइन लॉन्च करना चाहता है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि पिछला IT सिस्टम फ्लॉप क्यों हुआ. तो उन्होंने बोला है हाई कॉस्ट, there was no one who was guiding, there was no control over the resources, operation system और application software दोनों जो था वो इन हाउस डेवलप किया था उसी टीम ने, तो वो भी एक रीजन हो सकता है. फिलहाल मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है कि मेरे पास आईटी टीम है नहीं, लैक ऑफ आईटी रिसोर्सेस. मेरे पास आईटी टीम है नहीं, ये मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम मेरा होगा कि अब मुझे अगर आईटी सिस्टम सेट करनी है तो मुझे आईटी सिस्टम सेट करने के लिए सेटअप कॉस्ट आएगी और उसके बाद उस सेटअप को मेंटेन करने के लिए रनिंग कॉस्ट भी आएगी, विच इज गोइंग टू क्रिएट एन एडिशनल बर्डन ऑन मी. सो वो एडिशनल बर्डन मेरा एडिशनल प्रॉफिट देने के बजाय लॉस ऑफ प्रॉफिट भी दे सकता है. सो इवन दैट पार्ट इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. टेक्नोफोबिया, मतलब कुछ लोगों को ऐसा डर लगता है टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने में, यार कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए. सो स्टाफ एट W may be concerned about not feeling able to carry out new jobs required for them. क्या है, आप अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हो तो वर्कर को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. कुछ लोग रेडी नहीं होते इस चीज के. See, change is an unavoidable part of life, but we don't like changes. That is a fact.
तो अगर मुझे एक ही काम करने करने को बोलो तो भी मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे आप चेंजेस करने को बोलो तो एज अ वर्कर मुझे लगता है कि क्या यार, क्यों चेंज करने का, छोड़ना, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, क्यों चेंज कर रहे हो। सो दे मे रेजिस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ सच इनोवेटिव idea. Secondly, लास्ट टाइम भी हमारा कंट्रोल ना होने की वजह से आईटी सिस्टम फेल हुआ था, तो इस बार मुझे मैनेजमेंट का सपोर्ट भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल। मुझे मैनेजमेंट का सपोर्ट भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, बिकॉज कंट्रोल इज अ फंक्शन विच इज रन बाय द मैनेजमेंट। करेक्ट। फिर लैक ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट, इट इज लाइकली दैट W's कस्टमर विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन परचेज डेकोरेटिव आइटम ऑनलाइन। They may, for instance, wish to try out or physically see by themselves. ये भी कॉमन सेंस है। अगर डेकोरेटिव आइटम कोई ले रहा है तो वो स्क्रीन पे देख के तो डिसाइड नहीं कर सकता ना, उसके लिए उनको एक्चुअली फिजिकली प्रोडक्ट वेरीफाई करना कोई भी पहले प्रीफर करेगा। देखो आज मुझे कोई चीज लेनी है तो ठीक है, अगर रूटीन चीज है, मुझे कैल्सी खरीदना है, मुझे पेन खरीदना है, मुझे लैपटॉप खरीदना है, तो ठीक है मैं ऑनलाइन खरीद सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर कोई शोपीस खरीदना है, कोई पेंटिंग खरीदना है, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि उसका रियलिटी में फील क्या होता है, स्क्रीन पे नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में जो दिखता है वो होता नहीं। करेक्ट ना। सो अपने अपने फोटो देख लो सोशल मीडिया पे, कितने अच्छे अच्छे हैं, तो फिल्टर विल्टर मार के लोग उसको अट्रैक्टिव बना के प्रेजेंट करते हैं। तो द आई वांट पीपल, कस्टमर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन सीइंग द रियल प्रोजेक्ट, द रियल प्रोडक्ट, उसका रियल फील लेना चाहिए। एंड देन सिक्योरिटी इश्यूज लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड डेटा एरर्स एंड ऑल, ये सारे इनिशियल चीजें हैं जिससे मैं चाहूंगा गो थ्रू करूं, सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट ऑनलाइन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स मुझे तकलीफ दे सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरा पूछा था, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ आईटी टू बी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या नहीं है, ये डिसाइड करना है हम लोग। सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा, यू विल बी हैविंग एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो मार्केट आपका सैचुरेट हो चुका है, मार्केट तो आपका सैचुरेट हो चुका है, तो वैसे भी आप एडिशनल मार्केट तो लोकली क्रिएट करने से रहे। तो अगर ऑनलाइन होता है तो आपका कवरेज भी बढ़ेगा, मतलब आप लोकल एरिया से बाहर हटके पैन इंडिया कवरेज मिल सकता है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कवरेज आपको मिल सकता है। इन दैट केस आप, ऐसा हो सकता है कि आपका सेल बढ़ जाए। मतलब आज मैं सपोज एक मुंबई के एक पर्टिकुलर सबब में या एक शहर में काम कर रहा हूं, तो ठीक है यार, मतलब मुंबई से दूर दूर से लोग मेरे पास आएंगे, पर ज्यादातर लोग लोकल ही होंगे। और मार्केट में अब सैचुरेशन आ चुका है, इसका मतलब मैं एक सर्टेन लेवल के आगे मार्केट साइज एक्सपांड नहीं कर सकता। और अगर मैं मार्केट साइज एक्सपांड नहीं कर पाया तो मुंबई में तो मुझे कोई मार्केट नहीं दिख रहा है, एडिशनल मार्केट। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन आ गया तो कानपुर वाला भी मुझसे खरीदेगा, दिल्ली वाला भी मुझसे खरीद सकता है, कलकत्ता वाला भी मुझसे खरीद सकता है, पेरिस वाला भी मुझसे खरीद सकता है, युगांडा से भी मुझसे कोई खरीद सकता है, जाम्बिया से कोई खरीद सकता है, किसी भी कंट्री से अक्रॉस द ग्लोब कोई भी मुझसे माल खरीद सकता है यार। तो मेरा मार्केट एक्सपांड हो रहा है, तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकती है। दूसरा, स्टेक होल्डर्स, क्या है ना, मेरा मार्केट एक्सपांड हो रहा है, इसका बेनिफिट सीधा रेवेन्यू पे दिखेगा, रेवेन्यू पे बेनिफिट दिखेगा तो प्रॉफिट पे दिखेगा, प्रॉफिट पे दिखेगा तो शेयर होल्डर्स खुश। करेक्ट। दूसरी बात कि अगर फिलहाल दूसरा फायदा मेरा ये होगा कि वहां पे जो मेरा ऑनलाइन में, सिंस फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, कस्टमर मेरे पास आएगा ही नहीं, तो मुझे स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑनलाइन पे देख के ही प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। तो डिस्प्ले डिस्प्ले शोरूम वोरूम सारे खर्चे बच जाएंगे मेरे, वो भी तो एक फायदा ही है। हाँ, लेकिन आईटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंट्रोल मतलब आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट बढ़ेगी, प्लस कंट्रोल करने के लिए मुझे एक रिकरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। और क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी इज
टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, मुझे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपग्रेड करता जाऊंगा, जैसे जैसे अपग्रेड करता जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे हर बार टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर करता हूं, जब मेरे मार्केट में और कोई कंपटीशन है नहीं, तो डेफिनेटली जो क्रीम होगा वो मार्केट का मुझे मिलेगा। मेरा सेकंड कॉम्पिटिटर मार्केट में आने से पहले आई कैन गेट एस्टेब्लिश इन द मार्केट एंड आई कैन स्टार्ट creating my own brand name in the market in terms of online dealing। बस एक फैक्टर है जो आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज इसेंशियल। क्योंकि जब भी आपका कंप्यूटर मार्केट में एंटर करेगा, हो सकता है कि वो बेटर टेक्नोलॉजी लेके एंटर करे, तो उसके सामने आपको भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़े। दीज आर द फैक्टर्स विच you must take into consideration before implementing IT system for W Limited। समझ में आया ये concept? Now the next case study is very interesting, case study 3। Bhatia Motor Works BMW is one of the renowned coach builders in North India with a mission to design and fabricate high quality buses that are innovative in style and engineering, whilst maintaining standards of reliability। So innovative भी है और quality wise reliable भी है। BMW has market both locally as well as internationally। Human resource of BMW is highly skilled and well versed with latest tools and techniques of respective functional area। BMW is innovative company, always try to improve its performance। Till date, standard costing at BMW is limited only up to calculation of variances। Analysis and classification of variances are never performed. But newly appointed cost controller is highly motivated because recently, post his appointment, the budgetary system at BMW was revamped drastically as a part of cost efficiency drive। Some was done to give best response to variance identified, if any। Not only this, but cost controller is also interested in incorporation of relevant costing and learning curve in standard costing and budgetary control system। With the help of management accountant, you be able to fetch following data pertaining to different divisions। Fabrication division, BMW manufactures two products, seat handle and seat cover। This is fabrication division, seat handle and seat covers with BMW logo imprint on both apart from fabrication। Product B takes one product takes 6 hours and the other one takes 12 hours। In a month of 25 actual working days of 8 hours each, यानी कि 200 घंटे की बात कर रहे हैं, 1200 units and 750 units were produced। Okay, BMW employs 75 men in the department responsible for producing these two products। The budgeted hours 1,86,000 per annum। Number of budgeted working days were 26, but due to breakdown, production function actually remains operated for 25 days only। Painting division, the budget was prepared by the management accountant for painting division based on the performance report of the last year। He assumes that workers have learning curve of 95%, but the workers are skilled and specification of task is well known to them, so they assure their manager of 90% learning curve। The value of that learning curve is also given, fantastic। So learning curve index we know, so we can use it in the calculation। Since BMW believe in participatory budgeting, hence management accountant revised the budget estimate post feedback from workers group। In each month, 15 buses are made ready for delivery after painting and fabrication।
It is estimated that initial bus will take 20 hours of painting. So this is initial time taken for producing the first product. It is estimated that learning will be terminated post 6th unit. मतलब आपको लर्निंग का जो इम्पैक्ट मिलेगा 10% टाइम सेव होते जाएगा 6 यूनिट के बाद इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद है ना लर्निंग कर्व? देखो ये रिवीजन सेशन है तो इसका मतलब आपको लर्निंग कर्व तो आता ही होगा, बिकॉज इसमें आप लर्निंग कर्व डिटेल में स्क्रैच से डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रैक्शन वैल्यूज log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है, log 5 की वैल्यू दी है, एंटी लॉग दिया हुआ है। चलो ठीक है। Is favorable variance being conclusive proof of efficiency or investigation of variances is essential? Definitely। सिर्फ फेवरेबल है इसलिए अच्छा थोड़ी होता है। मुझे 2000 घंटे में काम खत्म करना चाहिए था ना, मैंने 1800 घंटे में काम खत्म किया, लेकिन क्वालिटी की बैंड बजा दी। If I am sacrificing quality, if I am impairing quality, that is not considered to be actually a favorable variance, but then records पे तो वैसे ही दिखता है। तो unless you analyze variances, you cannot simply discuss or you cannot simply conclude whether it is favorable or adverse. So it is essential for us। देखो लिखा है variance identified post comparison and actual cost against standard cost are not the conclusive sign of performance। No doubt variances are strong indicator of the potential problem। However, investigation of root cause of the adverse variances is necessary। root cause, आपने मेरा अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने यही कहा है, I have been hammering the same thing। I want to know the root cause, I want to know the root level। So मटेरियल यूसेज का कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये पता लगाना चाहिए कि मटेरियल की यील्ड और मटेरियल का कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज किया था। जब लेबर का टाइम वेरिएंस आप निकालते हो तो टाइम वेरिएंस के बाद आपको पता होना चाहिए आइडल टाइम कितना है, एफिशिएंसी कितना है। एफिशिएंसी जब निकालते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें से लेबर के कॉम्बिनेशन की वजह से कितना वेरिएंस है और एक्चुअल वर्कर्स ने कितना ज्यादा टाइम लिया, लेबर यील्ड। ये एक चीज थी। जब आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फॉलो करते हो, आप वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हो, बट यू डोंट स्टॉप एट वॉल्यूम वेरिएंस। आप ये जानना चाहते हो कि चलो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आया, ठीक है, लेकिन क्या और अच्छा हो सकता था? सी यू कैन डू बेटर देन व्हाट यू हैव डन। तो सिर्फ फेवरेबल वेरिएंस मिला है इस क्राइटेरिया पे तालियां नहीं बजाते। इफ आई एम गेटिंग अ फेवरेबल वेरिएंस, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर मोर फेवरेबल वर पॉसिबल और नॉट। अगर इससे तो 2000 फेवरेबल वेरिएंस मिला वॉल्यूम, मुझे पता चला मैंने एक्स्ट्रा दिन काम किया है, एक एक्स्ट्रा दिन काम किया है, ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा है फेवरेबल वेरिएंस। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आवर्स भी काम किए, मतलब एक दिन में 10 घंटा काम होना चाहिए, मैंने एक दिन एक्स्ट्रा बुलाया, उस दिन 12 घंटा काम किया, तो मेरा कैलेंडर वेरिएंस भी फेवरेबल है, मेरा कैपेसिटी वेरिएंस भी फेवरेबल है। लेकिन अगर एफिशिएंसी के नाम पे अगर इनएफिशिएंसी हुई होगी तो आवर्स थोड़े ज्यादा लिए होंगे तो जस्ट इमेजिन 1000 घंटे में जो करना चाहिए था वो आपने 2000 घंटे में किया। अगर ये काम आपने ढंग से किया होता तो आपका वेरिएंस शायद इससे भी ज्यादा फेवरेबल आता जितना दिखा रहा है। सो फेवरेबल वेरिएंस पे रुकते नहीं है, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फेवरेबल वेरिएंसेस एंड इन दैट केस ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस इज एसेंशियल। एक्सप्लेन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। अच्छा, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस आपने पहले ही आप देख चुके हो, मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। मैंने ना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, मैंने ना स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। मतलब मेरा स्टैंडर्ड ये कहता है कि 10 किलो के कंजम्पशन में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। यू शुड परचेज इट फॉर 5, तो आपको 50 रुपए पड़ेंगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए आपको 10 किलो का कंजम्पशन करना चाहिए। 1 किलो का प्रोडक्शन, एक यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए यू शुड बी कंज्यूमिंग 10। 5 रुपए आपका प्राइस होना चाहिए, 5 रुपए में खरीदना चाहिए, तो 50 रुपए आपको पर यूनिट लगेगा मटेरियल कॉस्ट। 50 रुपया पर यूनिट आपकी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन बाद में आपको पता चला कि यार नया टेक्निक यूज करके, नया टेक्नोलॉजी है अपने पास, वो यूज करके या मटेरियल का कुछ सही सब्स्टिट्यूट ढूंढ के मैं वही काम, मैं वही एक यूनिट 8 किलो में बना सकता हूं।
ठीक है, थोड़ा सा महंगा मटेरियल है वो, लेकिन जो परफॉर्मेंस देता है मटेरियल, तो जो आउटकम देता है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए 10 किलो इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं नया टाइप का मटेरियल यूज करूं तो वही 1 यूनिट फिनिश गुड्स का 8 किलो में बन सकता है, भले उसके लिए 5 के बदले 6 देना पड़े, फिर भी मेरा ओवरऑल कॉम तो 48 में हो ही रहना। ये मैंने स्टैंडर्ड रिवाइज कर लिया। लेकिन एक्चुअली जब प्रोडक्शन हुआ दोस्तों, when actually the production happened, that one unit which was produced, the one unit which was produced, it was produced in 9 kgs, और उसके वो आपको अवेलेबल करके मिला 4 रुपए, तो आपका खर्चा हुआ 36। अब ये सिचुएशन समझिए, दिस इज माय ओरिजिनल स्टैंडर्ड, दिस इज माय ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ओजी ओरिजिनल स्टैंडर्ड, जो मैंने रिवाइज किया था ये सोच के कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन जब मैंने एक्चुअली परफॉर्मेंस देखा तो वो कुछ और ही था। तो यार अगर मैं ट्रेडिशनल वेरिएंसेस निकालूं तो मेरे लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा भाई 50 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, 36 रुपए में काम डन, 14 फेवरेबल। इसके दो रीजंस थे, एक था कि मैंने प्राइस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, 5 रुपए में प्रोडक्ट खरीदना चाहिए था, 4 रुपए में काम कर दिया, 5 रुपए में प्रोडक्ट खरीदना था, 4 रुपए में ही खरीद लिया, तो 1 रुपया मैंने सेव किया, और मैं सेव उस पे करता हूं जो मैं एक्चुअली कंज्यूम करता हूं। अरे आई विल बी सेविंग और आई विल बी स्पेंडिंग मोर ओनली इफ आई एक्चुअली कंज्यूम दिस। तो मैंने 5 के बदले 1 रुपया सेव किया, लेकिन मैंने कंज्यूम किया था 9 किलो, तो मतलब मेरा टोटल सेविंग 9 रुपया हो गया। और जब मैं क्वांटिटी का बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि 10 किलो का काम मैं 9 किलो में खत्म कर रहा हूं, मतलब मैंने 1 किलो सेव किया है। अब ये क्वांटिटी वेरिएंस तो आपके प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो प्राइस डिसाइड नहीं करता तो मुझे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते, हम इसे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पे मुझे आता है 5 एडवर्स, सॉरी 5 फेवरेबल, मतलब यार सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल वेरिएंसेस पे रिलाई करोगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा ही नहीं कि आपका नुकसान हुआ है। कैसे? अरे मेरी बात समझिए ढंग से, आपका स्टैंडर्ड रिवाइज हो चुका था, तो मतलब आपको 48 खर्च करने की परमिशन थी, आपने 36 में काम खत्म किया, तो आपने 14 नहीं 12 रुपया ही सेव किया। तो होशियारी थोड़ा कम मारने का, आपने 14 रुपीज सेव नहीं किया, यू हैव सेव्ड ओनली 12, क्योंकि आपको 50 में नहीं 48 में रिवाइज हो चुका था। अच्छा इसका भी दो रीजन है, 6 रुपए में जो माल लेना चाहिए था आपने 4 रुपए में ले लिया, 2 किलो आपने बचाया, आई मीन 2 रुपीज पर केजी आपने बचाया 9 पे, तो ये 18 फेवरेबल। अरे देवा, मतलब आपने 12 रुपए का ओवरऑल कॉस्ट बचाया, लेकिन 18 रुपए तो बच रहा है सिर्फ प्राइसिंग की वजह से। लेकिन दोस्तों जहां पे 8 किलो कंज्यूम करना चाहिए था, वहां पे मैं 1 किलो ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से मेरा 6 का यहाँ पे होता है नुकसान, इसीलिए मेरा ओवरऑल वेरिएंस कम होके 12 पे सेटल हुआ है। ये चीज आपको कभी पता नहीं चलती अगर आपने एक्चुअल को रिवाइज के साथ कंपेयर नहीं किया होता। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, 50 रुपए का ओरिजिनल स्टैंडर्ड 48 पे आ चुका था, तो 2 फेवरेबल तो मैं पहले से जानता था होने वाला है। तुम लोग ने 14 फेवरेबल देके कौन सा बड़ा तीर मारा है, तुम लोग ने फेवरेबल सिर्फ 12 रुपए दिया है, ये वाला, क्योंकि 5 रुपए के बदले 6 रुपए में खरीदना, ये तो मैंने खुद बोला था आपको 8 किलो के लिए, 5 रुपए के बदले 6 में खरीदो, मैंने खुद बोला था। अच्छा 10 किलो माइनस 8 किलो, 2 किलो कम लगना चाहिए, ये भी बोला था मैंने, इंटू 5, तो ये आता है। मतलब जब मैंने स्टैंडर्ड चेंज किया था ना दोस्तों, जब मैंने स्टैंडर्ड रिवाइज किया था ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि 2 रुपए से मेरा फायदा होना चाहिए। तो आपका टोटल फायदा ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से आप भले ही दिखा रहे हो 14 रुपए का, पर 14 रुपए में से 2 रुपए का फायदा तो मेरे प्लानिंग में ही निकल गया था।
मैं पहले से जानता था 50 का कॉस्ट 48 होने वाला है, आप और कम करके गए। दूसरी बात, आपने 5 रुपए का माल 4 में खरीदा। देखो ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि 5 का माल मैं 6 में अलाउ किया था, आपने 4 में खरीदा। तो मतलब मैं सोच रहा था कि 8 का नुकसान होगा, आपने मुझे 18 का फायदा करके दिया। उसमें 8 का नुकसान होगा, आपने मुझे उसमें 8 का फायदा कर दिया। अरे आप समझ रहे हो इस बात को? और क्वांटिटी 10 के बदले 9 में हो गया, 10 के बदले 9 में हो गया, खुशियां मत बनाओ। 8 किलो में हो जाना चाहिए था, ये तो स्टैंडर्ड आपका 8 पे आ चुका है। स्टैंडर्ड आपका 8 पे आ चुका है, आपने 9 डाला है। तो मतलब आपको इस एनालिसिस के बाद क्लियर पता चलता है कि यार मेरी सारी गलती यहाँ पे, वरना मैं और सेव करता। अब जो ये ट्रेडिशनल जो होता है ना, ट्रेडिशनल का मतलब ओरिजिनल स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल डेटा। प्लानिंग वेरिएंस का मतलब होता है आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड। और ऑपरेशनल का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। इसलिए देखो ना यार, 2 फेवरेबल 12 फेवरेबल, 2 फेवरेबल 12 फेवरेबल, नेट इफेक्ट इज 14 फेवरेबल। तो 14 फेवरेबल में से 2 फेवरेबल आपका क्रेडिट नहीं है मैनेजर साहब, ये तो मैनेजमेंट ने प्लान करके पहले ही डिसाइड किया था कि 50 के बदले 48 होगा। तो आप 50 से 36 नहीं कर रहे हो, आप 48 से 36 कर रहे हो, क्योंकि 48 तो पहले से ही जान के बैठे थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये तो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, इंटर से लेके अब तक। लेकिन ट्रेडिशनल ये 2 पार्ट्स होंगे। तो देखो, प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल करूंगा मैं, तो रिवाइज तो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो देख लो, और डिटेल में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो वैसे भी यहाँ पे काफी डिटेल में ही बता दिया मैंने। तो क्या होता है जब प्लान चेंज होता है, जब मैनेजमेंट अपना प्लान चेंज करती है, बजट चेंज करती है, बजट रिवाइज करती है, स्टैंडर्ड रिवाइज करती है, तो दैट गिव्स यू प्लानिंग वेरिएंस। इसके लिए जिम्मेदार मैनेजर नहीं है। लेकिन अगर रिवाइज स्टैंडर्ड से भी आगे जाके एक्चुअल डेटा कुछ और होता है, तो दैट हैज टू बी एन आउटकम ऑफ ऑपरेशन। वो तो ऑपरेशन की वजह से हुआ है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन? द रूट लेवल मैनेजर। तो ये जो है, ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो मैनेजमेंट का काम। समझ में आया? ट्रेडिशनल वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। प्लानिंग वेरिएंस मतलब चेंज इन प्लानिंग। प्लानिंग वेरिएंस मतलब चेंज इन प्लानिंग। स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड। और फिर ऑपरेशनल क्या है? ऑपरेशनल मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। समझ में आया? तो प्लानिंग प्लस ऑपरेशन मुझे ट्रेडिशनल देता है, इसलिए ट्रेडिशनल को स्प्लिट करके 2 चीजें निकाली। ट्रेडिशनल वेरिएंसेस मिले, इसमें से कितने पहले से पता थे, मैनेजमेंट ने रिवाइज करके कितना निकाला था, इतना। ओके, 25,000 बचाया, लेकिन 10,000 तो मैनेजमेंट ने ही बोला था कि कम हो जाएगा। मतलब 25,000 बचाया, तो उसमें से 10,000 तो पहले से मालूम था बचने वाला, क्योंकि मैनेजमेंट हैड चेंज द स्टैंडर्ड। हाँ, तो बाकी का 15,000 आपने ऑपरेशन में बचाया होगा, तो आप उसके लिए बेनिफिट ले सकते हैं। ये है आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशन। सो दिस इज ड्यू टू रिविजन इन स्टैंडर्ड। ये आपको क्लियर कर दिया है, ये आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद मैंने जो डिस्कस किया वही लिखवा दिया है वहां पे। Standard cost used for variance calculation is not always relevant cost. Explain the importance of relevant cost while determining standard cost of variance analysis. देखो दोस्तों, अब ये कौन सा फंडा है, सुनिए। Normally when you calculate standard costing variances, you directly calculate variances and you finish it off. जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस हुआ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज करते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, आपको 10,000 किलो में काम खत्म करना चाहिए था, आपने 12,000 किलो में काम खत्म किया, और जो भी स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपए आपने इनकर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मटेरियल का कोई कंस्ट्रेंट है नहीं,
मटेरियल लिमिटेड नहीं है तो आप ठीक है एक कैलकुलेशन करके छोड़ दो। लेकिन जब आपका बॉटलनेक सिचुएशन है, जब आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल कॉस्ट, यू कैनॉट हैव रॉ मटेरियल मोर देन 12,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आई कैनॉट हैव मटेरियल मोर देन 12,000, so 12,000 is my key factor. 12,000 is my key factor. अगर 12,000 is my key factor तो इसे 12,000 के की फैक्टर के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 12,000 के की फैक्टर को मुझे कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? दोस्तों एक वेरी सिंपल बात समझिए, आपका काम 10,000 किलो में हो जाना चाहिए था, आपने 12,000 किलो लिया। You should have completed your work in 10,000 kgs. You have taken 12,000 kgs. ये पूरा 2,000 किलो एक्स्ट्रा आपने उसी के लिए डाल दिया जो 10,000 में होना चाहिए था। अगर आपने आपका काम ढंग से यानी कि 10,000 किलो में खत्म किया होता तो बचे हुए 2,000 किलो में मैंने और फिनिश गुड्स बनाए होते, मुझे मार्केट से वो पैसा मिलता। सपोज 2 kgs per unit is requirement. Suppose 2 kgs per unit is a requirement of material. तो यार ये जो 2,000 एक्स्ट्रा किलो मैंने यूज किया है, ये जो 2,000 एक्स्ट्रा किलो मैंने यूज किया है, इन 2,000 एक्स्ट्रा किलो में मैंने 1,000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स बना दिए होते, which would have probably given me contribution of 8 per unit. तो कैन आई से एक प्रोडक्शन के लिए 2,000 किलो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की वजह से मैं कहीं पे 1,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स का नुकसान उठा रहा हूं, वो जो मुझे 8 रुपया पर यूनिट दे सकता था, मतलब मैंने ये जो प्रोडक्शन किया है ये 8,000 का कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस करने के बाद किया है। तो मेरा यूसेज वेरिएंस सिर्फ 2,000 इंटू 5 10,000 एडवर्स नहीं है, वो होगा 18,000 एडवर्स, क्योंकि मुझे ये नुकसान भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो मटेरियल अगर अनलिमिटेड होता सप्लाई में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मेरे पास 12,000 किलो था, मैंने सोचा था 10,000 में ए बनेगा, 2,000 में बी बनेगा, बी 2,000 में 1,000 यूनिट्स बी के बनते थे, 8 रुपया पर यूनिट मिलता था। ये 10,000 में बनना चाहिए था, तो ये 2,000 भी आपने इसी के चक्कर में वेस्ट कर दिए। तो मेरे 1,000 यूनिट्स बी के अब बनेंगे नहीं, तो 8,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जरूरी नहीं है रेलेवेंट कंसेप्ट यहाँ पे, बिल्कुल जरूरी है। तो मेरा यूसेज वेरिएंस 10,000 माइनस 12,000, 2,000 एडवर्स इंटू 5, 10,000 एडवर्स नहीं है, 10,000 एडवर्स तो होगा, 10,000 एडवर्स तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ 10,000 में 8,000 भी जोड़ दूंगा। I have lost contribution of 8,000. I have lost contribution of 8,000. I have consumed quantity 2,000 extra. मतलब 10,000 की एक्स्ट्रा क्वांटिटी की वजह से नुकसान और 8,000 का कंट्रीब्यूशन खोने का नुकसान, मतलब मेरा 18,000 इज माय मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और आपको पता है इसका इंपैक्ट क्या है? बी के मैंने 1,000 यूनिट्स कम बेचे तो उसके सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पे भी उसका असर पड़ा होगा, जिसके लिए आप मार्केटिंग मैनेजर को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। 1,000 यूनिट कम क्यों बेचे? अरे 1,000 यूनिट्स बने ही नहीं इसलिए कम बेचे। क्यों नहीं बने आपके 1,000 यूनिट्स? क्योंकि वो तो एक आ गया। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में से 8,000 का बर्डन हम लोग कम कर देंगे और वो यहां पे ऐड कर देंगे, क्योंकि बी के 1,000 यूनिट्स में बेच नहीं पाया क्योंकि बने नहीं। तो मार्केटिंग मैनेजर की गलती नहीं है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में नहीं आना चाहिए। गलती किसकी है? प्रोडक्शन मैनेजर की, जिसने 2,000 किलो कंज्यूम किया, जिसके चक्कर में बी नहीं बन पाया। तो बी ना बनने का, बी ना बिकने का, 8,000 का लॉस होने का असली रिस्पॉन्सिबल बंदा सेल्स मैनेजर नहीं है, पर प्रोडक्शन मैनेजर है। तो वो 8,000 एडवर्स मैं वॉल्यूम वेरिएंस से माइनस करूंगा और मैं चार्ज करूंगा इस बंदे को, ताकि मुझे पता चले कि ये 10,000 के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो 18,000 के लिए जिम्मेदार है। ये होता है वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम का, ये होता है रिलेवेंट का असर। देखो उन्होंने लिखा है इट इज बेसिकली एडेड बाय कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। एंड नाउ आई हैव फाइनल कैलकुलेशन। फाइनली क्या पूछा इन लोगों ने? बजटेड लेबर आवर्स, कंप्यूट रेलेवेंट बजटेड लेबर आवर्स अप्लाइंग लर्निंग कर्व। ये तो एकदम सिंपल है।
देखो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला याद ही है ना, y इज इक्वल टू ax रेस टू b। y मतलब मेरा टोटल एवरेज टाइम पर यूनिट, a का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टेकन फॉर इनिशियल यूनिट, x is the quantity of production which I am planning and b is index, मेरा लर्निंग कर्व इंडेक्स कोएफिशिएंट। अब देखो दोस्तों, मुझे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि 6 बसेस के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये टाइम है मेरे पहले बस का, 6 बसेस का मुझे एवरेज टाइम निकालना है। तो लॉग के हिसाब से अगर मैं अप्लाई करने जाऊं तो दिस विल बी द सेकेंड स्टेप फॉर मी। log 6 मतलब log 2 प्लस log 3। तो मुझे ये सब सॉल्व करने के बाद मुझे log y मिल जाएगा। log y मिलने के बाद भी दर बदर की ठोकरे मत खाओ, क्वेश्चन में आपको एंटी लॉग दिया हुआ है, 15.23 आवर्स आएगा। मतलब मैं जब 6 बसेस बनाता हूं तो मुझे ऑन एन एवरेज 15.23 आवर्स लगते हैं विद द एग्जिस्टिंग लर्निंग कर्व। 15.23 आवर्स इनटू 6 बसेस, मुझे 91.38 आवर्स लगते हैं 6 बस बनाने के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 बस के बाद सेम टाइम लगे, मतलब 5 बस से 6 बस में जाने तक जो टाइम लगा था वही टाइम अब 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 में लगेगा। तो मैंने वैसा ही कैलकुलेशन लर्निंग का 5 बसेस के लिए कर लिया, तो मुझे पता चला 5 बस के लिए 78.3 आवर्स लगते हैं। ओ माय गॉड, 5 बस के लिए 78.3 आवर्स लगते हैं, 6 बस के लिए 91.38 आवर्स लगते हैं, मतलब 13.8 आवर्स मुझे लगेंगे 5वें बस से 6ठे बस में जाने के लिए, विच विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल नेक्स्ट बसेस। सो 13.08, देखो ध्यान से देखना, मेरा पहले बस का टाइम, 5 बस का टाइम एवरेज 78.3, 5 से 6 13.08, 6 से 7, 7 से 8, ऐसा 15 तक, मतलब नेक्स्ट 10 बसेस के लिए मुझे 13.08 इंटू 10 130.8 घंटे लगने वाले हैं। तो मेरा टोटल आवर्स हो जाएगा 209.10। वरना हम क्या करते, 15 बसेस इंटू 20 आवर्स, 300 पकड़ ले, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। लर्निंग कर्व अप्लाई करने के बाद का आंसर आ गया, समझ में आया। पहले 6 बस का आंसर निकाला, फिर 5 बस का टाइमिंग निकाला, तो मुझे पता चला 5 बस से 6 बस पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है। वही टाइम 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसा 15 बसेस तक चलेगा। सो 13.08, 5 बसेस हो गया है, 15 बसेस बनाने, तो 10 बस के लिए 13.08 टाइम आवर्स लगने वाले हैं। तो 130.8 घंटे उस बस के, और 5 बस का टाइम 78.3, दैट गिव्स यू टोटल लर्निंग टाइम, टोटल लेबर टाइम 209.10 आवर्स। ये पूछा था इन्होंने लर्निंग कर्व में, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट कंट्रोल रेशियोज। कंट्रोल रेशियोज मतलब एक्टिविटी रेशियो measures the level of activity attained over a period of expressing standard hours। इसका मतलब ये होता है, देखो आपने सोचा था 5000 घंटा काम करोगे, लेकिन आपने जो काम उठाया मार्केट में से वो 4000 घंटे का ही था, मतलब आपने 1000 घंटे का काम उठाया ही नहीं। तो बेसिकली आप 80% एक्टिविटी पे काम कर रहे हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैंने आपसे ये कहा कि मैं बजटेड आवर्स मेरे 5000 थे, लेकिन जो मैंने काम उठाया वो 4000 घंटे में खत्म करने वाला था। आप ऑफिस में जाते हो, 10 घंटे का ड्यूटी है, आपको बॉस ने जो काम दिया वो 8 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100 इज द आंसर। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100 इज द आंसर। ये यहां से मिल सकता है आपको डेटा, वर्किंग इन्होंने दे रखा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिए। सीट हैंडल्स के इतने यूनिट्स, सीट कवर के इतने यूनिट्स बनाओगे, एम आई राइट? इतने आवर्स की जरूरत है, तो मुझे स्टैंडर्ड आवर्स मिल गए।
अब मुझे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि मेरे बजटेड आवर्स जो थे वो 1,86,000 थे 12 महीने के, मतलब एक महीने के हो गए 15,000। मतलब मेरे बजटेड आवर्स ही थे 15,500। जो काम मैंने उठाया वो है 16,200 घंटे का। 16,200 घंटे का काम मैंने उठा लिया, जबकि ताकत 15,500 की थी, तो मैंने 104.52 पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने 104.52 पे काम करना शुरू कर दिया, ये उसका मतलब हुआ। So we need to work for 4.52% extra what is budget as compared to what is budgeted for. Capacity, देखो आपने एक्चुअली देखा जाए तो 15,000 घंटे में काम खत्म कर दिया। कैसे? 25 दिन का महीना, एक महीने में 8 दिन काम करते हो, तो एक बंदा 200 घंटा काम कर सकता है एक महीने में। आपने 75 वर्कर काम पे लगा दिए, you have employed 75 workers, so 200 per worker into 75, 15,000 घंटा काम हुआ। 15,000 घंटा काम हुआ है और 15,500 होना चाहिए था। दैट मीन्स यू हैव नॉट यूटिलाइज कैपेसिटी फुल्ली, यू हैव यूटिलाइज इट पार्टली। तो ये रहा आपका रेशो के हिसाब से। अच्छा, नंबर ऑफ डेज में भी दिया है, 25 दिन यूटिलाइज किए और 26 दिन यूटिलाइज करने का प्लान था। 25 दिन यूटिलाइज किए, 26 दिन यूटिलाइज करने का प्लान था। दैट मीन्स इट इज अंडर यूटिलाइजेशन। समझ में आया बात? देखो, मुझे 15,500 घंटे अवेलेबल थे मेरे पास। जो काम मैंने हाथ में लिया था, जो काम मैंने हाथ में लिया था वो ले रहा था 16,200 का। 15,500 कैपेसिटी होने के बाद 16,200 का काम हाथ में लेके बैठ जाते हो। इसका मतलब यू आर वर्किंग एट 104.52% ऑफ एक्टिविटी। कैपेसिटी की बात करूं तो 15,500 घंटा काम हो सकता था, लेकिन मेरे वर्कर्स ने 15,000 घंटा काम किया है, तो आई हैव अंडर यूटिलाइज देम to the extent of 500 hours. Calendar is basically about your utilization in terms of days. मैंने fixed overhead variance calculation में ये डिटेल में डिस्कस किया है। Calendar ratio indicates efficiency or rather utilization in terms of days. पर 26 दिन काम करने वाले थे, क्वेश्चन में बजटेड डेज 26 दिए, लेकिन 25 दिन ही काम किया, मतलब एक दिन कम यूटिलाइज किया, अंडर यूटिलाइजेशन इट इज। और एफिशिएंसी रेशियो का मतलब होता है कि 16,200 घंटे में जो काम होना चाहिए था वो तो 15,000 घंटे में खत्म कर दिया। दैट मीन्स इट इज 108। देखो, एफिशिएंसी रेशियो दो तरीके से होता है। मैं जब कहता हूं कि 100 यूनिट्स बनाने के बदले 80 बना दिए, 100 यूनिट्स बनाने के बदले 80 बना दिए, मतलब मैं एफिशिएंट नहीं हूं, मैंने कम क्वांटिटी बनाई है, तो मेरा एफिशिएंसी रेशियो लेस देन 100 होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी और बनने चाहिए थे 100 यूनिट्स, बना दिए 80। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100, एक्चुअल क्वांटिटी 80। मेरा एफिशिएंसी रेशियो 100 से कम होगा। 100 से कम होने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो 80/100। तो मतलब अगर मैं आउटपुट को बेस बनाता हूं तो स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल इनटू 100 आता है। लेकिन यही अगर मैंने आवर्स के बारे में सोचा, स्टैंडर्ड आवर्स 100, एक्चुअल आवर्स 80, 100 घंटे का काम 80 घंटे में खत्म करते हो, मतलब यू आर एफिशिएंट। और अगर आप एफिशिएंट हो तो आपका रेशियो 100 से ज्यादा होना चाहिए। 100 से ज्यादा रेशियो होने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो जब भी एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करोगे हमेशा याद रखना आवर्स वाला डेटा है या आउटपुट वाला। आउटपुट वाला डेटा होगा तो स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल नहीं आएगा, एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड आएगा। लेकिन हमारे पास तो आवर्स है, 15,000 घंटे में काम कर दिया है जो 16,200 में होना चाहिए था, तो 108% एफिशिएंसी। ये है आपका रेशियो का एनालिसिस एज पर केस स्टडी नंबर 3। इसको बड़े अच्छे से मार्क करके रखना, इसमें से कुछ ना कुछ तो 100% आएगा एग्जाम में, किसी ना किसी फॉर्म में। इस केस स्टडी को आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस? इसमें मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिक रिवाइज कर लिया, प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंसेस, फिर मैंने इसमें लर्निंग कर्व डिस्कस कर लिया है और मैंने इसमें रेशियोज भी डिस्कस कर लिए।
अब इन तीनों में आपका मेजर पार्ट इस केस स्टडी में प्रैक्टिकल पार्ट कवर हुआ है. I hope that that was useful for you people. Thank you so much.